Good morning, students. Now, next chapter is flying together, and I read half of the lesson. Now, complete this chapter's reading. This para, I read it again. We shall see, answered the words, but they did not destroy the creeper. क्रीपर बेटे वेल को कहते हैं, वेल. डिस्ट्रॉय माने होता है नष्ट, बाद में भी बताएंगे अभी. दे फॉरगॉट द वाइस ओल्ड बर्ड्स एडवाइस एज द क्रीपर ग्रू. इट बिगिन विंडिंग इट्स वे अप the tree. Stronger and stronger it became until it was as strong as thick rope. Rope means. One morning when the geese had gone out. geese बेटे क्या, हंस जो होता है, गूस होता है, उसका प्लूरल गीस होता है. एक हंस को गूस और वन मोर देन हंस geese had gone out in search of food. A hunter came to the forest. So this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We are caught in the hunter net. Oh, what shall we do? Don't make a fuss now, said the wise old bird. Long ago I told you to destroy the creeper, but you did not. Now see what has happened. Tomorrow morning the hunter will come back and kill us all. We were foolish, wept the bird. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. Then listen carefully, replied the wise bird. When the hunter comes, you must all pretend to be dead. Pretend माने होता है बेटा बहाना बनाना. Just lie still. The hunter will not want dead bird. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead bird and take. Please turn the page. Them home. When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and flew away. In the morning, the hunter came to the tree and climbed up. He looked at the geese in net. They are all dead, he muttered to himself. He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. Then all at once they got up, flapped their wings,
and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree, he watched all geese fly over. Shiv Kumar, adapted from a story from Panchatantra, a wise old bird. Okay, the reading has been completed, my student. Now I shall explain in Hindi. Okay, are you ready? डीप इन आ फॉरेस्ट, एक घने जंगल में, डीप माने गहरे, घने जंगल में स्टूड अ वेरी टॉल ट्री, एक बहुत लंबा पेड़ था, बड़ा विशाल ऊंचा। इट्स लीफी, इसकी पत्तियां, ब्रांचेस डालियां, स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म, एक चारों तरफ मजबूत हाथों की तरह फैली हुई थी। दिस ट्री वाज द होम ऑफ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, इस पेड़ पे कुछ जंगली हंसों का फ्लॉक झुंड रहता था। एक हंस को गूस और प्लूरल गूस का गीस से। दे फेल्ट शेप देयर, वो वहाँ सेफ महसूस करते थे। वन ऑफ द गीस, उनमें से एक जो हंस था, वाज आ वाइज, बहुत बुद्धिमान था। ओल्ड, उम्र दराज था, पक्षी था, बहुत पुराना था। ही नोटिस, वह उसने नोट करा, आ स्मॉल क्रीपर, एक छोटी सी बेल, एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के नीचे है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड अबाउट इट, उसने वो बताया कि दूसरे पक्षियों को इसके बारे में। डू यू सी दिस क्रीपर, आप इस क्रीपर को देख रहे हैं, बेल को नीचे से जो आ रही है। ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, लेट अस डिस्ट्रॉय, आओ इसे हम नष्ट कर दें, इसे ख़त्म कर दें इस बेल को। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, आस्क्ड द गीस इन सरप्राइज, बाकी जो हंसों ने कहा, वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसे क्यों करना है नष्ट, क्यों करना देना चाहेंगे नष्ट। इट इज़ सो स्मॉल, ये बहुत छोटी है। एंड व्हाट हार्म कैन इट, और ये हमारा क्या नुकसान कर सकती है। माई फ्रेंड, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड द वाइस ओल्ड बर्ड, उस बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने कहा, उत्तर दिया, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, ये छोटी सी बेल जल्दी ही बड़ी हो जाएगी। एज इट क्रीप अप द ट्री, पेड़ के चारों तरफ फैल जाएगी गोलाई में। एंड इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और बाद में ये बहुत पतली, अभी पतली है, वो मजबूत हो जाएगी फिर। व्हाट ऑफ दैट, आस्क्ड द गीस, फिर क्या होगा। व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइस बर्ड, उस बुद्धिमान पक्षी ने कहा, डोंट यू सी, आप नहीं देखोगे, आपको नहीं दिख रहा है ये। विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, इस बेल की मदद से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइम द ट्री, बहुत सरल संभव हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, कोई व्यक्ति इस बेल की सहायता से हमारे पेड़ पे चढ़ सकता है। आ हंटर कैन कम अप, कोई शिकारी आएगा, एक आ हंटर कैन कम अप, कोई भी शिकारी आ सकता है, एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार सकता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, सीख भी मिल रही होगी, लेसन भी मिल रहा होगा कि हमें अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए, विश्व डोबे, इन लोगों ने नहीं माना। वेल देयर इज नो हरी, कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया उन लोगों ने। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, अभी बहुत छोटी है। इट विल बी पिटी ऑन डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी हमें इस पर दया करनी चाहिए। पिटी माने दया होता है, और डिस्ट्रॉय इट नाउ, अभी इसे हम ख़त्म नहीं करेंगे। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस, उस बूढ़े पक्षी ने सलाह दी, इसे ख़त्म कर दो क्रीपर को, ये अभी छोटी है, जवान है, अभी ख़त्म कर दो। नाउ इट इज टेंडर, अभी ये मुलायम है। एंड यू कैन कट इट बी ईजली, इसे आप आसानी से काट सकते हैं। लेटर इट, बाद में इट विल बिकम हार्ड, ये बहुत मजबूत हो जाएगी। एंड यू विल बी नॉट एबल टू कट इट, और आप इसे नहीं काट पाएंगे। वी शैल सी, हम देखेंगे, हम देखेंगे। आंसर द बर्ड, पक्षियों ने आंसर दिया कि हम इसे देखेंगे।